If someone is really willing to bring transformation in their life, the way they are living right now and the way they want to live, if they want to travel that path, I would say incorporate everything in life. बिकॉज आज की डेट में स्पीड बहुत मैटर करती है कि आपने कितनी स्पीड में किसी चीज़ को अचीव किया, कितनी स्पीड में आपने अपने आप को इवॉल्व किया. कभी कभी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है उनके ऑरा में कि वो उनको हीलिंग खुद की करने ही नहीं देती. उन्होंने खुद सीख भी लिया है तब भी वो उसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बना पाते. So transformation is bringing changes in your life, in your physical appearance, the way you talk, the way you think, the way you conduct yourself, the way you think about yourself, self-image about yourself. You don't have to recall every past painful incident to heal it. जो किसी को every week 2-3 times हो रहा है, right? उसको होना ही बंद हो जाए. तो this is a real transformation. Hi everyone, welcome to Bliss Square Healing Academy. This is episode 2 of Demystifying Healing with Saurabh Kalra. Today we're going to talk about what sort of transformation happens in healing and exactly how does one experience it. Hi Saurabh. Hello. So Saurabh, the reels and the content that I have come across on the page and the YouTube channel of Bliss Square Academy, I happen to realize कि आप एक चीज़ mention करते हो कि transformation happens, आप अपना aura cleanse करो, you get healing done or you do healing. What sort of transformation are you talking about and who can experience it? A layman, me or someone else, how can they experience? And is it transformation? Because transformation, if you ask me, is a big word. When I talk about transformation, I would say it is elevating yourself, it is uplifting yourself, it is changing the way you think. Also the change in your behavior, your habits, smallest of your behaviors, your habits. आप कैसे किसी गोल को परस्यू करते हो आपकी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपकी हैबिट्स ही अलाइन नहीं है तो आप गोल को परस्यू तो बहुत बाद में कर पाओगे. तो आपकी हैबिट्स चेंज होना, आपके थिंकिंग चेंज होना, आपकी मेंटल स्टेट चेंज होना, आपकी इमोशनल स्टेट चेंज होना और आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर, आपके आसपास के लोगों का एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें जो है ना आपके ट्रांसफॉर्मेशन में काउंट होती हैं. क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो तो आपके ट्रांसफॉर्म से मेरा मतलब है जैसे आप अगर मान लो अपलिफ्ट हुए, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आया, कुछ पॉजिटिविटी आई, तो एज ए रिज़ल्ट आपके आसपास के लोग भी आपकी तरफ जो बिहेवियर रखते हैं वो चेंज होता है, आपको कैसे ट्रीट करते हैं वो चेंज होता है. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्रिंगिंग चेंजेस इन योर लाइफ, in your physical appearance also, the way you talk, that also, the way you think also, the way you conduct yourself, the way you think about yourself, self-image about yourself, and also the kind of goals also change. मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो लोग अपने गोल्स चेंज कर लेते हैं, अपने बारे में बड़ा सोचने लगते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने लगते हैं. तो फ्रॉम स्टार्ट कि आप इंटरनली कैसे हो से लेकर आप लाइफ में क्या क्या चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या अचीव कर रहे हो, वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं. सो व्हेन आई से ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट जस्ट वन हैबिट विल चेंज. नो, as a person you will grow, as a person you will change, and after a point people start saying you are not the same person. Right. राइट. सो दैट इज़ फॉर मी, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन कि आपका सोचने का तरीका भी बदले, आपके बोलने का तरीका भी बदले, आपके बिहेवियर्स भी चेंज हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो, आपकी वेल्थ में भी इंक्रीज़ हो, आपके जो रेट ऑफ अचीविंग योर गोल्स है वो भी बढ़े, तो आप एक ओवरऑल लाइफ में जॉय को एक्सपीरियंस कर पाओ, रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर पाओ. ये सारी चीज़ें जब होती हैं देन आई से इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. Saurabh, for healing, आप बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो, people do it, जैसे sound healing है, body healing है, there are other things. Out of all this, what is it that you suggest one should continue, pursue? Because if somebody has to do healing or get it done, they would want to know a clear, maybe roadmap that this is what should I do. What do you say? So as we were talking about transformation, so and if someone is really willing to bring transformation in their life, the way they are living right now and the way they want to live, if they want to travel that path, I would say incorporate everything in life. Okay. बिकॉज आज की डेट में स्पीड बहुत मैटर करती है कि आपने कितनी स्पीड में किसी चीज़ को अचीव किया, कितने स्पीड में आपने अपने आप को इवॉल्व किया. फॉर एग्जांपल अगर किसी को इंग्लिश बोलना भी सीखना है तो आप उसके लिए 1 महीना ले रहे हो या 1 साल ले रहे हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आपकी वो एफिशिएंसी कितनी है वो किसी काम को, किसी गोल को अचीव करने की. राइट. सो व्हाई आई टीच सो मैनी मोडालिटीज़, द रीज़न इज़ the speed at which I want to bring transformation, right? I teach Reiki also. अगर किसी को physical health issues हैं, किसी को basic issues हैं लाइफ में या बड़े issues भी हैं, I teach Reiki. I say everyone must learn Reiki because वो आपकी everyday life के challenges को, चाहे वो आपके इमोशनल लेवल पर हो, आपके मेंटल लेवल पर हो, कोई फिजिकल हेल्थ हो, आपकी खुद की हो या आपकी फैमिली में किसी की हो,
आप बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हो। घर में किसी को फीवर आ रहा है, किसी को कोई पेन हो रहा है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो रही है, घर में कलह बहुत हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, ऐसे केसेस में रेकी बहुत अच्छा हेल्प करती है। बड़े केसेस में भी करती है, जहाँ पर कोई बड़ी बीमारी है वहाँ भी हेल्प करती है। लेकिन एट दैट स्टेज आई से यूज़ मोर थिंग्स विद दैट। आप क्रिस्टल साथ में ऐड कर लो, आप साउंड हीलिंग साथ में ऐड कर लो, तो क्या होता है आपके रिजल्ट की, आपकी रिकवरी की जो रेट है वो बहुत तेज़ हो जाता है। अगर आप देखो तो हम रिट्रीट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एक तरफ मैं सिखा रहा हूँ लोगों को खुद हीलर बनना, कि आप अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म करो। हमारे पास जितने भी डिस्टेंस हीलिंग के केसेस आते हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों को हम ये बोलते हैं आप खुद सीखो, खुद करो, आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, इस केस के लिए हमारी ज़रूरत ही नहीं है। कोई बहुत मेजर क्रिटिकल इश्यूज़ होते हैं तो ऑफ कोर्स वी प्रोवाइड दैट सपोर्ट, या उस फैमिली के पास उतना टाइम नहीं है कि वो हीलिंग कर पाए, देन वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हमारी कोशिश एज एकेडमी यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करें और उनको सिखाएं कि कैसे खुद की हीलिंग कर सकते हो, अपनी फैमिली की हीलिंग कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ लाइक आई हैव सीन पीपल जिनके पास सच में वो इतनी हेल्पलेस स्टेट में होते हैं, जैसे मान लो कोई डिप्रेशन की स्टेट में है या फिर कोई सच में बहुत फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। उन केसेस में हमें डिस्टेंस हीलिंग का सपोर्ट देना पड़ता है कि ठीक है कुछ देर हम आपकी हीलिंग कर देंगे, देन यू स्टार्ट ऑन योर ओन। क्योंकि कभी कभी निगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है उनके ऑरा में कि वो उनको हीलिंग खुद की करने ही नहीं देती। उन्होंने खुद सीख भी लिया है तब भी वो उसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बना पाते। तो देयर वी माइट कम एज ए सपोर्ट, or we might ask them to keep a few crystals in their aura, in their surroundings, which can absorb that negative energy, और उनके वो रास्ते खुलें कि भाई वो हीलिंग के प्रैक्टिस को अपनी लाइफस्टाइल में ला पाएं। Right. So that they come at a point where they can at least heal themselves in regular Yes, requirements. yes. Because consistency is very important in self-healing. Right. So one thing that you mentioned is retreat. What is a retreat? I'm sure everybody watching would want to know. What is a retreat and what happens over there, and who is it for? So the retreat is a place where we combine all these modalities together. ठीक है, क्योंकि आपके जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपके मेंटल ब्लॉकेजेस भी होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस भी होते हैं, कभी कभी ऑरा में कोई हैवी एनर्जी होती है, एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से भी होती है, आपके चक्रास में कुछ इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, कभी कभी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स देखने को मिल रहे होते हैं जो उनके गोल के साथ अलाइन नहीं होते, या उनकी ड्रीम लाइफ जो है या उनकी जो आइडियल लाइफ है उसके साथ अलाइन नहीं होते। वो चाह तो रहे हैं कि मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, पर उनकी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का बहुत इम्बैलेंस है, एंड एज ए रिजल्ट जब भी उस साइड को ट्रिगर मिलता है वो ऐसे छटपटाता हुआ एक इंसान बाहर आता है कि उसको वो खुद ही That harmony is not possible. Yes, harmony is not possible in that scenario, right? तो to address all the issues at once, कि आप एक एक करके एड्रेस करो और फिर रिजल्ट लाओ, लाइक आई वाज सेइंग कि स्पीड एट विच यू ट्रांसफॉर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिट्रीट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वो सारी लेयर्स पर एक साथ काम करते हैं, सारे ब्लॉकेजेस पर एक साथ काम करते हैं। वहाँ पर रिटर्न एक्सरसाइजेज होती हैं, पूरी वर्कबुक होती है जिसमें आप अपने जो डीप रूटेड ट्रॉमास हैं उनके ऊपर भी काम कर रहे होते हो, और कुछ ट्रॉमास के ऊपर तो हम आपको पता भी नहीं लगने देते आपके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि you don't have to recall every trauma, you don't have to recall every past painful incident to heal it. My objective is that people should get healed without even knowing what is being healed. What is the root cause of that? वो कोई ancestral lineage में कुछ मिला मुझे, वो मेरे womb में जब था कोई तब उसको कुछ ऐसी कंडीशनिंग हो गई, या कोई बचपन में उसका कोई बुरा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से कोई कंडीशनिंग हो गई, वो रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जब आप आ रहे हो तो वो आपकी हीलिंग के प्रोसेसेस में हो जाए। सो वी स्टार्ट फ्रॉम ऑरा क्लीनिंग, we do the chakra scanning. First of all, we scan each and every chakra, your aura, ki what are the causes for these problems in your life, or sometimes you don't even know this is a problem in my life. We analyze and we identify कि ये तो problem बन रही होगी, इसको heal करना है, and when that gets healed वो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखता है, and then they message us back कि सौरभ ये ठीक हो गया, इसके लिए तो हम आए भी नहीं थे। राइट तो वो जो चेंजेस हैं, फॉर दैट रीज़न वी हैव क्रिएटेड दिस रिट्रीट, कि आपकी लाइफ में जो जो भी चीज़ें एलिमिनेट करने की है वो एलिमिनेट हो पाएँ, और जो चीज़ें ऐड करने की हैं, जो क्वालिटीज़ ऐड करने की हैं, जो बिहेवियर्स, जो माइंडसेट, जो राइट एनर्जी की ज़रूरत है वो आपकी लाइफ में ऐड हो सके, उसके लिए रिट्रीट रखी गई है। Right. And I think a lot of times, most of us, हमको लगता है we've gone beyond a certain thing, but we've not. कुछ चीज़ हो सकता है we feel that oh इससे तो हम heal हो चुके, but शायद नहीं हुए हैं, but it is still sitting. और certain, I think ये this happens a lot with childhood circumstances. In fact, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो गया है। Oh, I have healed this. I have Yes. I have worked on this a lot. Yes. But sometimes people just talk about it. They think मैंने थेरेपी अटेंड कर ली तो ये हो गया, या मैंने कोई सेशन अटेंड कर लिया तो ये हो गया, या मैंने सोलो ट्रैवल कर लिया तो
Right. So sometimes people just talk to themselves and they self positive talk का इतना trend आ गया है कि सब heal मैंने ये work कर लिया, ये भी एक fashion हो गया है. I have worked on my Somebody traumas. told me there's something called toxic positivity also. I meet so many people with They such told me traits. I have it, but I'll ignore that part. They told me, but I think ये है. Jokes apart. Yes. A lot of people, they don't want to face their traumas, but they just keep believing it's done and dusted while it is not. It is there in their behavior. And I would not want them to believe the other way. I would makes want no them to sense. believe that everything is healed. I will Right. just do something more, and I want them to come from that space only. I don't want them to first make them believe कि नहीं तुम्हारा अभी भी trauma है, नहीं अभी भी problem है. No. I want them to feel कि बिल्कुल सब ठीक है. You just come and see the changes now. While it is being worked on. Yes. For example, I will tell you one example. There was a lady who came for our retreat. She had been doing Reiki with us and all. She had been associated with us for a very long time. And she had come for the retreat. And she, after going from here, she said, Saurabh, I am seeing certain changes in me. I don't know what has happened. But for the last 10 years, something was bothered. Her husband had cheated on her. Okay. And and not just once, multiple times. So she felt betrayed. She felt, dishonored and a lot of negative emotions about her own identity. Right. And that used to trigger her a lot. That used to trigger her anger and anxiety, a lot of negative emotions in her. And as a person, that was a very toxic behavior for the people around her also. So after going from here, she said the same people, similar incidences are not affecting me anymore. And earlier, when I would just even hear about this person and I would get triggered, why is this person coming again to my life? Why is he calling me again? And that would give me anxiety. But now it was not giving her anxiety. And she said, Saurabh, is it because of the retreat? And I said, I don't know. Because transformation happens, the day your energy shift, your transformation is bound to happen. No one can stop that. So retreat में जब कोई आता है, तो जो उसकी energy में shift होता है, उसके बाद उसको अपनी life में changes दिखते हैं. So this retreat is not about कि आप आओगे, आपको बहुत अच्छे experiences करवाऊंगा, मैं dance करवाऊंगा, मस्ती करवाऊंगा, Right. high fives करवाऊंगा. No. This is a place where you come for healing. Of course, we will dance, we will have fun, we will have good moments also. But at the same time, there will be a lot of work going on at your energy level, right? And that energy level work is the most important aspect in my head. When I am conducting the retreat, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है कि कैसे किसको किस healing की ज़रूरत है. And when that happens, after going from here, you must have seen, you also have attended one of the retreats, right? So you are part of that group also where people share their experiences, right? So you must have seen a lot of things there कि क्या-क्या लोगों के changes आते हैं. I've in fact, one of the things that I experienced right when I entered, not even, I hadn't gone through the whole thing, but right when I entered, one change, and I think I did mention it to you, was that there was some physical issue that I had back then. And right when I entered, I actually felt that it right away kind of, वो कम हो गया. And मैंने आपको ये बताया भी था. So for anybody who's watching, I would want you to tell them कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है. So let's say I am a new person who has never seen any retreat or this retreat. What am I expecting? And what happens over there? ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे? On a physical level, when I look at it, what am I going to look at? What am I expecting? So what happens that any irritation, any pain in the body or any physical ailment in the body, it's at the energy level as well. It's not just at the physical level, it's at the energy level as well. And it is said once you heal something at energy level, the physical symptoms automatically go away. तो जब आप retreat में आते हो तो वहाँ पर जो crystal grid होती है, जो crystals, we create a huge crystal grid, right? And in that we place so many crystals. We choose which crystals have to go. We choose the sequence of the crystals. We choose the geometry in which the crystals will be placed. A lot of things as per the requirement of the participants. That's why we choose participants कि कौन-कौन इस program में आ सकता है. We scrutinize कि कई बार हमें लोगों को मना करना पड़ता है कि आप इस वाले में नहीं, आप अगले वाले में आना. Why do you do that? Because मुझे पता है कि right now what kind of energy I'm going to create, what kind of changes I am going And to it deliver. might not be the one for them. Right. It might not be the one for them, or it might not be in alignment with their current state. First, I have to bring them in that zone where they can receive this kind of healing and a lot of things. So when we were talking about the room and all, right? Right. So you asked was what happens in that room that so many physical changes right. people experience, right?
द रीज़न इज़ द एनर्जी इन दैट रूम विद दैट ग्रिड. वो इतनी एक जिन लोगों को एनर्जी दिखती है वो लोग इस बात को वहाँ पर कई बार शेयर भी करते हैं, सर ऐसे एनर्जी की पूरी बॉल दिखाई दे रही है. ऐसे जिन लोगों को सिर्फ एनर्जी बॉडी में फील होती है वो बोलते हैं सर यहाँ तक फील हो रही है दैट समथिंग इज़ एंटरिंग माई बॉडी, समथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ माई बॉडी, मेरे पैरों में ऐसा फील हो रहा है. Because that energy which is coming from crystals, that crystal grid is so intense and so powerful and so precise that it heals you at the core level. And once that is healed, it is healed forever. So for example, there was a guy who had pain in his shoulder and he had gone to doctors, he was taking physiotherapy sessions also for months, but there was no improvement. In the retreat, just in 1 hour, he was surprised, he was sharing, अभी ये दर्द नहीं कर रहा है, इतने महीनों से दर्द होता है, अभी ये दर्द नहीं कर रहा है. एंड ही वाज लाइक कि पता नहीं कब तक ठीक रहेगा पर अभी तो नहीं हो रहा है. बट इट वाज इन 2023 एंड लास्ट आई स्पोक वाज आई थिंक 6 months बैक एंड देयर वाज नो पेन, नो रिटर्निंग ऑफ फिजियोथेरेपी, नो नथिंग. ही हैड nothing to do with any treatment, any medicine, any physiotherapy, nothing. He was saying me कि सारा वो कहाँ चला गया मुझे तो अब याद भी नहीं है कि कभी मुझे दर्द था. Right. It's probably because he released whatever he was holding onto on energy level, creating it. Because some problems are more at energy level, the symptoms are more because of the energy which is stuck there, less with the physical terms. Yeah. And the reason you asked कि हमने retreat को क्यों design किया, what was the reason? When we teach also, why did we design the retreat, right? So there are certain people, those who are so busy in their life, they have so much of responsibilities. For example, some CEOs, some industrialists or some bureaucrats, some doctors, they have such a busy lifestyle, but they have problems as well in their life. And they don't have time to sit and do their own healing, that too every day for months. So they said, Saurabh, I have seen such benefits working with you. I want this problem to be solved. And I was like, yeah, this needs to be addressed. When I was talking to myself, this needs to be addressed at so many levels to bring this change. So when I was designing solution for them, I thought, okay, this all things need to be done on this person. Right. And there were a group of people, like, different people telling me their different problems. So keeping those people in my mind, for the first time I designed the retreat, keeping those people in my mind, कि इन सबको solution देना है और कैसे दिया जा सकता है. तो फिर हमने देखा, अच्छा वहाँ पर क्रिस्टल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा साउंड हीलिंग भी देनी पड़ेगी, ऑरा क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, चक्रों पे भी काम करना पड़ेगा, मस्कुलिन फेमिनिन पे भी काम करना पड़ेगा. तो जब हम वो सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे थे तो वो करते एक रिट्रीट का, एक प्रोग्राम का एक शेप बना. बाद में हमने उसको रिट्रीट का नाम दिया, पर हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे जिसमें हम लोगों को सोल्यूशन दे पाएँ कि वो आएँ और जब जाएँ तो पूरा उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो और यहाँ से जाने के बाद उनको वो चेंजेस अपने अंदर दिखें. तो हमने जो पहला प्रोग्राम किया था वो 1 दिन का था, और जब हमने वो 1 दिन का किया तो हमें समझ में आया कि नहीं, अभी 2 दिन के प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसको हमें नेक्स्ट एक ट्यून अप की एक फर्दर एक ज़रूरत थी जो हम नहीं दे पाए 1 दिन में. तो फिर हमने उसको 2 दिन का किया. ठीक है. तो देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स विच आर फॉर 1 डे, देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स विच आर फॉर 2 डे, विच आर फॉर 3 डे. तो डिपेंडिंग ऑन द, लाइक आई वाज सेइंग ना, कि कुछ लोगों को हम मना कर देते हैं तो उनको मुझे बोलना पड़ता है आपका 1 दिन के प्रोग्राम में नहीं हो पाएगा, आपको 2 दिन के प्रोग्राम में आना पड़ेगा. Right. कुछ लोग होते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ आपको 2 दिन की ज़रूरत ही नहीं, आप 1 दिन वाले में भी आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा. तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोग्राम एंड कीपिंग दोज पीपल इन माई माइंड कि जिनको हीलिंग की तो बहुत ज़रूरत है, खुद वो कर नहीं पाएंगे, और अगर उनमें चेंजेस आ गए तो वो अपने नीचे बहुत सारे लोगों के अंदर चेंजेस ला सकते हैं. So keeping those people in my mind, we designed this program. Also, I think general impression of a lot of people who have seen such things on social media, probably on YouTube, on Instagram, is that when healing is happening or something of this sort is happening, which is working either on your energy level, spiritually, something, there are certain videos, even I have seen them, people cry a lot. There are certain ways people are shirking off their body. What is it? What is it that if somebody is coming over there, they are going to experience this? Should they expect such sort of रोना है या such sort of body movement? Is it like mandatory कि okay, I have come here, ये होगा? No, it's not mandatory. See, when there is something stuck within you and you're holding on to it, you don't know about it, right? But you are holding something inside. It might come out in the form of tears. It might come out in the form of some cries, some shout. It might come out in the form of some pain, some discomfort. But it will come out. And sometimes it might come out without any discomfort, without any, even you realizing what is happening. You just go to deep sleep and the healing is happening. So we have seen people, same session में किसी को बहुत तेज रोना आ रहा है और किसी को हंसी आ रही है. एंड ऐसा भी देखा है जो अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था, उसी सेशन में थोड़ी देर में वो हंसने लग जाए, राइट? तो और बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आओगे तो रोना ही पड़ेगा. लाइक इन अवर रिट्रीट वी हैव सीन पीपल कमिंग मल्टीपल टाइम्स. एक बार आए थे, फ़ायदा हुआ, फिर दोबारा आए, तिबारा आए.
राइट. तो लेकिन हो सकता है वो पहली बार में नहीं रोए थे, दूसरी बार में नहीं रोए थे. देयर वाज अ गाय, आई रिमेंबर 25-26 ईयर ओल्ड गाय, एंड ही वाज टेलिंग मी कि सर मुझे रोना नहीं आता, आई वांट टू क्राई पर मुझे रोना ही नहीं आता. बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट दैट कि रोना कि आएगा, आसपास इतने लोग रो रहे हैं, मुझे रिलीज मतलब रोना है. हाँ राइट, द रिलीज मतलब बिल्कुल रोना नहीं नहीं है. नहीं ऐसा Not बिल्कुल necessary. नॉट Might नेसेसरी. happen, might not. There was one person in the same retreat that I attended. I think उनको I saw in the group later. I think उनको अगले 1-2 दिन mild fever रहा. On a physical level, he had this symptom. Yes, it might happen. Mild fever or certain kind of discomfort in the body, sneezing के फॉर्म में हो सकता है या running nose के फॉर्म में हो सकता है. Fever and sneezing and running nose, these 2-3 things are sometimes rare cases में, मतलब कि 3-4 रिट्रीट में कभी एक बार मुझे को देखने को मिल जाता है कि हाँ किसी को हल्का सा आया, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ और फिर वो ठीक हो गया. बट द ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि आपको फीवर आया कि नहीं आया. of यू डोंट हैव टू course, right, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं ऐसा कि सर मुझे तो फीवर नहीं आया, सर मुझे तो रोना तो भी मुझ नहीं में आया, चेंज ही नहीं हुआ. हाँ मेरी हीलिंग ठीक से हुई कि नहीं हुई. एंड आई से कि आई डोंट नो, बिकॉज इट इज़ नॉट मी हु इज़ डूइंग द हीलिंग, इट इज़ हीलिंग विच इज़ हैपनिंग ऑन यू. अगर मैं सिंगिंग बोल बजा रहा हूँ तो हीलिंग आपकी होगी. Right, I just have to know where to keep the bowl, how much I have to strike, how I have to strike. I know I have to follow the process. I'm a very process-oriented guy. I use my intuition, I agree, but it's a process which is working. क्योंकि अगर आपके ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, आपके चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, आपकी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, आपके मेरिडियंस में जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद में काम होगा ही होगा. जस्ट यू हैव टू नो हाउ मच फॉर whom. दैट्स इट. अगर मेरे को देखना पड़ता है तो सिर्फ इतना देखना पड़ता है, हाउ मच फॉर whom. क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बार में सबको पूरा क्लीन कर लो. लेकिन आपको यहाँ से जाने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा और सस्टेन्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा. There is also one thing that I again remember from my experience of being in the retreat. One thing while we were leaving, one thing that you suggested was अगले 1-2 दिन probably some sort of light diet and all of that. So why do we do that? What is it? The reason is that energy is still moving in your body. The meridians, इतने जब कोर लेवल पर हीलिंग होती है तो सेल्स की हीलिंग चल रही होती है. अंदर जो स्टक इमोशंस हैं या जो कुछ भी स्टक एनर्जी है उसका रिलीज चल रहा होता है. सो आई से टेक मोर ऑफ लिक्विड डाइट एंड लेस ऑफ हैवी diet or alcoholic or any substances which might put you into trance state. Don't take such substances. Don't take heavy diet, because जो आपके अंदर जो एनर्जी है, देखो आपका digestive system requires a lot of energy without you even knowing it that it is taking some energy. So if you eat a lot of heavy food, all the prana shakti goes there. So our objective is that after the retreat, whatever the energy we have put in your body, let it work on the required areas instead of the digestive system. Now that you said it, one thing that pops up in my mind is, which means अगर हम रिट्रीट वेन्यू से चले गए, डजंट मीन वहाँ पे ख़त्म हो गया आपका हीलिंग, वो सस्टेन्ड है, चल रहा है. तो लेट्स से somebody has attended a retreat and they've done it, now they've gone home. So what is it like? वहाँ हुआ ख़त्म हो गया, और what are the after effects, or what can be a person's or an attendee's takeaway from that retreat? Okay, so we have, I will speak in terms of examples, because theory right. can Exactly. be my assumption, because कोई इसके ऊपर Absolutely. research तो नहीं है. We can speak in terms of examples कि क्या क्या लोगों के experience रहे हैं, right? So I have seen people are going from this retreat and telling me, सौरभ मेरा sinus trigger नहीं हो रहा है, is it because of the retreat? Just after 2 days or 3 days I got the message कि सौरभ यहाँ से जाने के बाद से मुझे trigger नहीं हो रहा है, and weeks after that, months after that वो नहीं trigger हुआ. जो किसी को every week 2-3 times हो रहा है, राइट, उसको होना ही बंद हो जाए, तो दिस इज़ अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन. किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, एंड आफ्टर गोइंग फ्रॉम दिस रिट्रीट, मैं नहीं कहूँगा पूरी ठीक हो गई, लेकिन एवरी सिंगल पर्सन इन देयर नेटवर्क वाज टेलिंग कि आपके बोलने का तरीका चेंज हो गया है, यू आर साउंडिंग सो बेटर नाउ, यू आर स्पीकिंग सो वेल नाउ. एंड दैट लेडी क्राइड लाइक एनीथिंग कि सौरभ, यू डोंट नो द फुलफिलमेंट दैट आई एम गेटिंग इन दीज कॉम्प्लीमेंट्स कि मेरे बोलने का तरीका इम्प्रूव हो गया है, राइट. कुछ लोगों का मैंने देखा है जिनके जो बोर्ड मेंबर्स में बैठते हैं, काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे हैं, उनके बोलने का तरीका चेंज हुआ, उनका जो ऑरा है वो शिफ्ट हुआ, तो उनकी कंपनी में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जो इमेज है वो चेंज होने लगी. उनका जो एक कहते हैं ना ऑरा चेंज हो गया, एक जनरल भाषा में कहते हैं उनका ऑरा चेंज हो गया, उनका ऑरा चेंज हो गया. How पूरी people तरह से. listen to them has also changed. It Yes. does how people respond to what you say. Right. So all these changes we have seen in people going after this retreat, and they were not practicing anything after going from here. They tell me, कई लोग तो मेरे को आके openly बोल देते हैं, सौरभ, I come to your retreat every 2 months, I go back and live my normal life, Right, and then I and then I come back again after 2 months to reset. Yes. Right. So this is how some people do, but
I encourage people to go from here and use what I have taught. Like आप अपनी हीलिंग भी करो, क्रिस्टल्स यूज़ करो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर लगाओ, जस्ट सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो. One of the participants of a retreat, I remember उनका group में message था that, and after a very long while, because I think he attended when I did, he was in the same retreat. I remember उनका एक message था that his perspective of looking at things has transformed. He does not look, because one very significantly, I think one significantly quirky one-liner I remember from him, because he happened to mention, I feel I am my biggest problem. And after a while, he happened to mention in the group that kind of perspective of him has changed. So on perception level also, do you say some changes happen? Yes. You know, at perception level, I have seen so many changes in people. The best example that is coming to my mind right now is there was a guy from, I don't know where he had come from, but he said one thing after going from here. Ki, Saurabh, I used to be complaining about my wife's behavior, how she is conducting with the kids, how she is carrying herself, why she is not doing this, why she is not doing that, why the house is so messy, and all those things that, you know, I am going for work, coming back, the house is so messy, and I had so many complaints from her. But after this program, I don't know what has changed. I am able to see all the efforts that she is putting. I am able to value what she is doing. I am feeling thankful to her. कहाँ मैं उसके लिए वैल्यू ही नहीं करता था, आज मैं उसके लिए थैंकफुल फील कर रहा हूँ. एंड दैट चेंज्ड द रिलेशनशिप, दैट you know, so much of harmony in the house. I'm able to recall all the words. I'm not able to, you know, share everything that he shared with me. But I think viewers can understand this, कि you know, इस तरह का जब एटीट्यूड होता है और सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, कि आपको दिखने लग जाए कि मेरा पार्टनर कितने एफर्ट लगा रहा है, तो लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं. तो पर्सपेक्टिव चेंज इज़ अ वेरी वेरी बिग चेंज, बिकॉज वो बोलने से नहीं आता. आपको कितना भी मैं बोल बोल के बोलूँ ना कि अरे देखो वो भी तो कितना एफर्ट लगा रहा है, प्रवचन, मैं इसको कहता हूँ प्रवचन. That's what I say. That transformation comes from within you. It doesn't come from outside. It comes from within you. मैंने उसको नहीं बोला अपनी वाइफ के लिए क्या ग्रेटिट्यूड रखो या क्या उसको मैं ऑब्जर्व करो, नहीं, कुछ बात ही नहीं हुई. It just happened on its own. So this is what I want to give to everyone. कि आपको पता भी नहीं है आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है. आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, आपका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, आपके बिहेवियर्स को चेंज करने की ज़रूरत है, आपकी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है. आपको पता भी नहीं है till you come to this retreat, and when those changes come in your life, you feel like, oh wow, I'm doing this now. If this has happened, I think 90% of people around the globe need this now. Because everybody has to start seeing the, Yes, you know, it's and everyone. That's the reason 80% of people come again to this Yes, program. because these things, I think it is not just restricted to a husband or wife. That is primary, because that's the most important relationship of your life. However, eventually to your colleagues, employer, employee, to be able to see their perspective, is it 6 or is it 9? That's also, I think, important. It's very powerful when that perspective shift. Yes. Saurabh, when somebody comes for a retreat, let's say there is a person who is doing it for the first time and they have no experience of anything of this sort. I want the viewers to understand what should they expect. कि घर से कर रहे हैं या कहीं जाना है या what is it? I want them to have a clear picture on retreat. क्या है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे. So retreat is a program. इसको रिट्रीट कहें ना कहें वो आपके ऊपर है, क्योंकि जनरली लोग रिट्रीट से मतलब निकालते हैं कि कहीं जाएंगे, रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे. दिस इज़ नॉट अ, ऑफ कोर्स यू विल रिलैक्स, यू विल बी डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन. सो फर्स्ट थिंग विल बी, आप जब वहाँ आते हो तो आपका ऑरा क्लीनिंग होती है, स्कैनिंग से स्टार्ट होगा कि आपके ऑरा के ब्लॉकेजेस, चक्रा के ब्लॉकेजेस स्कैन होंगे. देन विल स्टार्ट विद योर ऑरा क्लीनिंग, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है, जो भी आप लेकर आए हो साथ में अपने ऑरा में, वो सबके साथ आई डोंट वांट दैट. तो वन थिंग आई वांट to clarify here कि घर से नहीं कर रहे हम. नहीं, going नहीं. somewhere. Yes, I want everyone to know this, that you go someplace. Yes, we do it at a resort. We do it at a very high vibrational resorts जहाँ की खुद की एनर्जी अच्छी हो, नेचर एलिमेंट अच्छा हो. And you choose the venue accordingly. Yes, right. फिर वहाँ पर जब आप आते हो तो you check in the morning. आपका वहाँ पर स्कैनिंग से स्टार्ट होगा, आपकी ऑरा क्लीनिंग होगी, वहाँ पर आपकी ग्रिड के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाएगा, आपके हीलिंग स्टार्ट होगी वहाँ पे. तो वी स्टार्ट बाय वर्किंग ऑन योर ऑरा, देन वी कंडक्ट डिफरेंट सेशंस. फॉर एग्जांपल वहाँ साउंड हीलिंग का सेशन होगा, वहाँ पर आपका ब्रेथ वर्क का सेशन होगा, देन वहाँ पर आपका क्रिस्टल हीलिंग के सेशन होंगे, मेरिडियन हीलिंग होगी, ठीक है. तो इन सारे सेशंस में लेयर बाय लेयर काम चलता है. इट्स नॉट रैंडम.
कि हमें ये सेशन करना था, नहीं, ये सारे सेशंस होंगे वहाँ पर फॉर अ रीज़न। किसी सेशन में हम आपकी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे होंगे, किसी सेशन में हम आपके ट्रॉमास को रिलीज़ करवा रहे होंगे, किसी सेशन में हम आपके जो सेलुलर लेवल पर डिटॉक्स की ज़रूरत होती है वो कर रहे होते हैं, कभी हम चक्रा बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। तो आप देखो अगर, तो लाइफ में ना कई सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर रही होती हैं क्योंकि वो इतना डीप रूटेड होती है कि आप उस पर कितना भी काम कर लो वो निकलती नहीं है। राइट। फॉर एग्जाम्पल एंगर, प्रोकेस्टिनेशन, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो इससे परेशान है उसको पता है कि कितना बड़ा इशू है इसकी जिसको लाइफ। फिर हम पर्सनालिटी ट्रेट बोल देते हैं। राइट, इसका तो गुस्सा है ही, या इसका तो गुस्सा है ही। आलसी ही है। राइट, ये तो बड़ बोला है, गुस्से में कुछ भी बोल देता है। भाई उससे पूछो उसके रिलेशंस कितने सफ़र कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो कुछ भी बोल देता है, या उसकी बातों का कुछ भी मतलब निकल जाता है, लोग उसकी बात समझ ही नहीं पा रहे। राइट, वो बोल कुछ रहा है, लोग मतलब कुछ या और अगर निकाल कोई रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, हाउ मच दे आर सफरिंग ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स या पर्सनल भी। राइट, Right. या फिर लोग कहते हैं ना इस बंदे में पोटेंशियल बहुत है, बस ये मेहनत नहीं करता। उससे पूछो वो करता नहीं है वाली बात नहीं है, उससे हो होती, नहीं रही। हाँ उससे हो नहीं रही। तो और यहाँ से इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सारे इश्यूज़ के ऊपर आपका काम हो सके, आपके बिहेवियर्स पे, आपके पैटर्न्स पे, आपके सोचने के तरीके पे, आपके काम करने के तरीके पे, आपके एफिशिएंसी पे, आपके रिजल्ट्स पे, आप कितने कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट्स क्रिएट करते हो, जिसको लोग जनरली लक कहते हैं। सो ये सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं कि आप जब रिट्रीट में आओगे तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक में ये सारे प्रोसेसेस होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और उन जो रिटन एक्सरसाइजेज हैं, जो वर्कबुक्स हैं हमारी, उनमें आप अपने पास्ट पर भी काम करते हो, अपने प्रेजेंट पर भी काम करते हो, अपने फ्यूचर पर भी काम करते हो कि अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करना है, कैसे अपनी लाइफ को चेंज करना है, वो बाहर पूरा ब्लूप्रिंट बनता है वहाँ। नाउ दैट यू सेड कि बहुत लोग इसको लक कह देते हैं, सो समथिंग दैट हैज कम टू माय माइंड इज, मैं ना थोड़े दिन पहले आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पोस्ट, इट वाज फ्रॉम सम अदर पेज व्हिच डिड मेंशन समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। इट वाजंट अबाउट हीलिंग पर से, बट इट मेंशन्ड अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड एनर्जी। एंड कमेंट्स में ना किसी ने लिखा हुआ था कि इस सब का कुछ फायदा नहीं है, जो आपकी किस्मत में प्लैनेट्स लिखे हैं वही होगा। तो एंड अ लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम दैट थॉट स्पेसिफिकली, बिकॉज हम लोग बहुत, मतलब इवन इफ यू वांट टू चेंज इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट माइंडसेट, बिकॉज हम बचपन से हमको बोला भी तो यही जाता है कि किस्मत ही है इसकी, या कुछ जो खराब लिखा हो है वो जाए, होके रहेगा। कुछ खराब हो जाए तो इसकी किस्मत ही खराब थी, इसने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो वो कॉन्सेप्ट एंड हीलिंग, हाउ आर यू, मतलब व्हाट डू यू से कि जो लोग मान के चलते हैं कि तो लक ही है, वो फिर व्हाट डू दे गेट हियर, कि मतलब वो लक या किस्मत को चेंज कर रहे हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, क्योंकि ये बहुत, मतलब दिस इज अ वेरी डीपली इंटैंगल्ड कॉन्सेप्ट। Yes, it is. I'm waiting for you to finish the question because let everything come out. और जो curiosity है आपकी वो आ हाँ, जाए so पहले। मतलब कि ये मेरे प्लैनेट्स में ही लिखा हुआ है, ये ऐसा ही होगा। एंड अगर मैं उस माइंडसेट से भी अगर कोई हीलिंग के लिए आ रहा है, रिट्रीट के लिए आ रहा है, तो व्हाट इज देयर इन दिस रिट्रीट फॉर देम, जिसको सब So बोलते हैं before luck। we come to the retreat now, I would want to answer this question first of all कि ये लक वाली जो बात लोग करते हैं ना, कि ये तो किस्मत में है, Right. जो किस्मत में होगा वही होगा, किस्मत का लिखा कोई मेट नहीं सकता, ऐसे कई सारे मिथ्स कह लो, या ऐसे माइंडसेट, ऐसा बिलीफ सिस्टम कह लो जो इंडिया में चलता है, सब जगह चलता होगा। somebody had written in the comments, अब अंबानीज के बच्चे वहां पैदा हुए हैं तो उनका लक ही है, व्हाट कैन यू चेंज अबाउट इट, ऐसी course. चीजें लोग बोलते हैं। Of course, few things are beyond your control, but few things are in your control. ठीक है, आप हम लोगों को तो छोड़ दो, आप अगर स्क्रिप्चर्स को उठाकर देखो, राइट। क्या राम जी, सबको पता है विष्णु जी का जब अवतार होगा तो उनको स्त्री वियोग में दर दर भटकना पड़ेगा, उनको ये श्राप था। ठीक है, जब वो आएंगे तो उनको ये भोगना पड़ेगा। राइट, वो आए, राम जी का अवतार लेकर आए वो, ठीक है, सीता जी का हरण हुआ, ठीक है, उनको लेकर चले गए। अब क्या राम जी बैठ गए, ये तो मेरी किस्मत में ही था? उन्होंने पूरी सेना तैयार की, उन्होंने समुद्र को सुखाने तक के लिए बाण निकाल लिया, उन्होंने हर वो चीज़ करी कि मेरे को सीता को वापस लेकर आना है। वो किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठे कि नहीं इतने साल बाद तो सीता आ ही जाएगी, हम क्यों कुछ करें। उन्होंने कर्म किए। आप कृष्ण जी को देख लो, उन्होंने क्या अर्जुन को बोला कि भाई किस्मत में होगा तो जीत जाओगे? नहीं, तुम बस बाण चलाते रहो, किस्मत में होगा तो जीत जाओगे। उन्होंने उसको पूरा अपलिफ्ट किया, उसकी बेस्ट स्टेट में लेकर आए, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट में लेकर आए, उसको अपलिफ्ट किया, क्लैरिटी दी, सब कुछ किया उसको, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी। उसका मोह हटाया, माया हटाई, सब कुछ हटाया उसका कि ये सब मोह है। जहाँ पर जैसे ज्ञान की ज़रूरत थी उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो ज्ञान दिया, क्लैरिटी दी आई वुड से, और फिर उससे कर्म करवाया। ये नहीं बोला बेटा तू तो जीत ही जाएगा, तू बस चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कर्म करने के लिए बोला। एंड देन व्हेन द पीपल से ना कि अच्छा क्यों किया कृष्ण जी ने ये, क्योंकि वो अर्जुन को उसकी बेस्ट फॉर्म में लाना चाहते थे, तभी तो वो उस युद्ध में अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। राइट, तो सिमिलरली जब हम लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं, एक आम इंसान, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ, तो आपको अपना बेस्ट वर्जन तैयार करना है।
आप क्या बेस्ट बन सकते हो वो तैयार करना है, उसके ऊपर मेहनत करो। और अगर सब कुछ किस्मत में ही लिखा है तो अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में क्यों भेज रहे हो? वो उनको कुछ बनना होगा तो वो तो बन ही जाएंगे, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? उनको मस्ती Somebody करवाओ। very wise said, God helps those who help themselves. राइट तो अब मैं आता हूँ आपके इस क्वेश्चन पे, जो आपने बोला रिट्रीट के लिए। तो ये रिट्रीट वो प्लेस है, वो हमने इस प्रोग्राम में हमने वो डिज़ाइन किया है जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाए, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, हर लेवल पर। एंड मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट द एनर्जी लेवल, क्योंकि जब आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, जब वहाँ शिफ्ट आता है, तो ये ऊपर के जितने पहले मैंने नाम लिए थे ना, वो अपने आप है, वो बाई प्रोडक्ट हैं। तो वी वर्क एट योर एनर्जी लेवल, ऑफ कोर्स वी वर्क एट द कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल एज वेल। हम वहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं उसके लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एट द एनर्जी लेवल, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ अटेंडेड सो मेनी प्रोग्राम्स इन द पास्ट, आई स्टिल कीप गोइंग टू सो मेनी प्रोग्राम्स, राइट। आई सी कई प्रोग्राम्स में तो ऐसा होता है, लोगों को बोला जाता है यू क्राई, यू शाउट, यू थिंक अबाउट दिस एंड यू शाउट, यू मूव योर बॉडी, एंड देन उन चीज़ों के वीडियो बनाकर डाल दिए जाते हैं, म्यूजिक चेंज करके। दिख ही नहीं रहा कि बोला जा रहा है कि शाउट करो, बोला जा रहा है अपने हाथों को ऐसे 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 करो। नो, वी डोंट डू सच थिंग्स इन अवर प्रोग्राम, वी डोंट आस्क एनीवन टू क्राई। हाँ, हम किसी को पास जाकर अगर कोई दिख रहा होता है कि होल्ड कर रहा है, ऐसे दबा दबा के रो रहा है कि आवाज़ ना निकल जाए, वी जस्ट गो एंड स्लाइटली साइलेंटली वी वेरी, बहुत धीरे से मैं उसको बोलता हूँ कि लेट इट फ्लो, जो हो रहा है उसको होने दो, उसको रोको मत, जो निकल रहा है उसको निकलने दो, राइट। कई लोग होता है जो कंफर्टेबल फील नहीं करते, स्क्रीन उनको लगता है कि हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और हमें इंस्टाग्राम पर डाल दिया जाएगा कि ये रो रहे थे यहाँ पर, बिकॉज पीपल कम फ्रॉम सच हाई प्रोफाइल्स इन अवर प्रोग्राम, राइट। तो ऑफ कोर्स वी मेंटेन प्राइवेसी। हम कोई भी कंटेंट को इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर डालने से पहले उन पार्टिसिपेंट्स को भेजते हैं, आर यू कंफर्टेबल विद दिस कंटेंट इन गोइंग टू सोशल मीडिया पर जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वंस दे अग्री देन ओनली वी पोस्ट दैट, अदरवाइज कई बार हम फेसेस ब्लर कर देते हैं। आप अगर हमारे पेज पे देखोगे फेसेस ब्लर मिलेंगे आपको, क्योंकि वी अंडरस्टैंड, मैं खुद भी इस बात को समझता हूँ कि किसी की वो जो स्पेस है, जिस स्पेस में वो जाकर रोया है, जिस vulnerable स्पेस, spot यस उनका। राइट, वो सेफ कहूँगा मैं तो, कि उसने इतना सेफ Right. फील किया कि वो they वहाँ could पर let it अपने go. आंसुओं को बहने दे, Right. राइट। क्योंकि वल्नरेबल आप अकेले में तो हो पाओगे, राइट, और वहाँ पर आप उतना सेफ फील कर रहे हो, और वो सिर्फ वो उसी मोमेंट में सेफ नहीं है, वो आफ्टरवर्ड्स भी आपके लिए सेफ रहना चाहिए। तो उस मोमेंट में जो हुआ, वहाँ जो हुआ वहीं रहेगा। कई पार्टिसिपेंट्स तो हमें ये तक बोल देते हैं, सौरभ आई डोंट वांट टू बी सीन एनीवेयर, सो वी आर ओके विद दैट एंड वी अंडरस्टैंड एंड वी रिस्पेक्ट दैट प्राइवेसी, कि ठीक है आपकी ये ज़रूरत है, इट्स ओके। बट we have seen people afterwards when they are transformed, they come up front and they share their experiences ki Saurabh, I want this to go to everybody. So yeah, we have seen such people and this is the objective of the retreat. In the retreat, because आपने mention किया पहले different तरीके से काम होता है, there are different modalities, there's a grid, then we have sound healing happening, तो अलग अलग चीज़ें हैं. Why do you use so many different things and how does it work, what is the utility? Yeah, utility because as a layman if somebody is watching. मैं ये नहीं कहूँगा एक मोडालिटी पूरी नहीं होती। साउंड हीलिंग अपने आप में एक सफिशिएंट हीलिंग मोडालिटी है, ये देखिए अपने आप में एक सफिशिएंट हीलिंग मोडालिटी है। क्रिस्टल ग्रिड अपने आप में है, ब्रेथ वर्क अपने आप में है, क्योंकि कई लोग अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स चला रहे हैं इन्हीं चीज़ों के, ठीक है। वाई आई कंबाइन, क्योंकि एक और एक जैसे 11 होता है ना, वैसे काम करता है। क्योंकि जब ग्रिड की प्रेजेंस में, जब उतनी हाई एनर्जी हमने क्रिएट कर रखी है, उस प्रेजेंस में जब हम किसी को ब्रेथ वर्क करवाते हैं तो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, अलग लेवल का रिलीज होता है, अलग लेवल की हीलिंग होती है। एंड दिस इज़ नॉट माई बिलीफ, दिस इज़ वॉट माई पार्टिसिपेंट्स हैव टोल्ड मी कि सौरभ मैंने इतनी जगह पहले ब्रेथ वर्क किया हुआ है, इट वॉज नेवर लाइक दिस वॉट वी डिड टुडे, एंड दे हैव अटेंडेड 3-4 टाइम्स एंड वो एंड दे कीप गोइंग। देखो स्पिरिचुअलिटी आज के डेट में ना थोड़ा सा एक ऐसी फील्ड हो गई है, लोग जगह जगह जाके एक्सपीरियंस करते हैं, ट्राई करते हैं। तो दे सेड कि सौरभ मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, पर यहाँ पर आके जब करता हूँ तो ऐसा होता है, व्हाट इज़ डिफरेंट हेयर? सो आई सेड बिकॉज वी आर डूइंग इन दिस वे, यहाँ पर एक मोडालिटी साथ में जुड़ी हुई है। सेम व्हेन, सो दैट्स व्हाई एक और एक तो 11 होता है। वी कंबाइन सो मेनी मोडालिटीज एंड इट्स नॉट एक और एक, दो, एक और दो, 3 मोडालिटी, नो, इट्स लाइक इतनी डीप रूटेड हीलिंग होती है उसमें कि वो हम कई बार हैरान हो जाते हैं कि ये एक रिट्रीट में इतना बड़ा चेंज आ गया। फॉर एग्जांपल दैट स्टैमरिंग एग्जांपल दैट आई गिव, आई डिडंट इवन नो कि उस लेडी को स्टैमरिंग का इशू है, क्योंकि उसने रिट्रीट में आके बहुत कम बोला और वो किसी के रेफरेंस से आई थी, तो हमें तो पता भी नहीं था कि उसका क्या इशू है। शी सेड कि आई हैव कम फ्रॉम माई रिलेशनशिप इशू, बट वी गॉट टू नो कि उसका ये भी ठीक हो गया। रिलेशनशिप तो जो ठीक हुआ ही, ये तो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ठीक हो सकता है कुछ। तो ऐसे ऐसे चेंजेस हमने देखे हैं लोगों की हीलिंग जर्नी में कि जो उन्होंने खुद से एक्सपेक्ट नहीं किए कि उनकी लाइफ में चेंज आ सकते हैं, और वो चेंज जब ठीक हुई तो लगा कि इससे बड़ा गिफ्ट तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। द साइनस एग्जाम्पल विच वी वर टॉकिंग अबाउट, शी हैड कम फॉर सम डिफरेंट रीज़न, एंड जब ये ठीक हुआ, जब साइनस ठीक हुआ, उसको कहती
आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि ये हो गया मेरे साथ, क्योंकि वो उसकी पूरी एफिशिएंसी लो कर देता था। किसी हाई परफॉर्मिंग डे पर जहाँ उसको परफॉर्म करना है और उसका अगर साइनस ट्रिगर हो जाए तो वो परफॉर्म नहीं कर सकती। शी इज़ ए प्रोफेशनल सिंगर, राइट, शी लिव्स इन मुंबई, आई कांट इवन नेम हर, ठीक है। तो वो उसका जब वो साइनस ठीक हुआ तो शी वॉज सो ग्रेटफुल कि ये हो गया। सो दिस इज़ वाई वी कंबाइन सो मेनी मोडालिटीज़ कि जब आपको रिजल्ट है वो फास्ट मिले और आपकी मतलब सारे चीज़ों पर हम एक साथ काम कर सकें, किसी एक चीज़ पर रुक के ना रह जाएं कि हम ये तो हो गया अभी इस वाले पे काम करना रह गया। नो, वी वर्क इन अ वे कि वो पूरा होलिस्टिक हो। एंड वी से होलिस्टिक, इट्स नॉट जस्ट लाइक होलिस्टिक वाला होलिस्टिक, नो, वी मीन व्हाट इज़, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ होलिस्टिक हीलिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रिड को देखो तो ग्रिड में इतने सारे क्रिस्टल्स लगे होते हैं और उनका अलाइनमेंट, उनकी प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, एंड एज ए रिजल्ट जो एनर्जी क्रिएट होती है वो वहाँ का एक ऐसा हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एक ऐसी हाई वाइब्रेशनल स्पेस क्रिएट करती है कि जब लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट मेडिटेशन सेल्फ दे स्टार्ट फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। उनको फील होता है कि समवन केम एंड ब्लेस्ड मी, इस तरह की चीज़ें। समटाइम्स पीपल फील द प्रेजेंस ऑफ देयर एंसेस्टर्स, समटाइम्स पीपल फील प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट एक बार तो ऐसा हुआ था, एक लड़के ने एक फीमेल को बताया कि आई फेल्ट समबडी इज ब्लेसिंग यू एंड ही लुक्ड लाइक, एंड वो लड़का और वो फीमेल, they were not related, they were not they were related. just participants, they were just participants, they didn't know each other from their personal space, ठीक है। एंड उन्होंने जब डिस्क्राइब किया उसको कि वो ऐसे दिखते थे, उस लेडी ने अपने फ़ोन में ढूंढ ढांड के कहीं से फ़ोटो मंगाई, कुछ कराई, अपने दादाजी की फ़ोटो निकाल कर दिखाई क्या वो ऐसे दिखते थे, एंड ही वॉज लाइक यस ही वॉज लाइक दिस वन, राइट। सो वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स हैपनिंग देयर जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता, right, कि ये opening कैसे the हुआ? energy to blessings. यस, इट्स जस्ट क्रिएटिंग दैट स्पेस कि आपको जिस हीलिंग की ज़रूरत है वो आपको मिल सके। वी जस्ट क्रिएट दैट स्पेस, वी आर जस्ट अ फैसिलिटेटर। आई ऑलवेज से आई कैन नॉट डू एनीवन्स हीलिंग, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर। आई कैन क्रिएट दैट स्पेस जहाँ आपकी वो हीलिंग हो सके। आई कैन यूज़ सच मोडालिटीज़ जिससे आपकी हीलिंग हो सके, पर होगी वो आपके अंदर ही। इट इज़ नॉट दैट मैं कोई काढ़ा बना के आपके अंदर डालूंगा और कुछ हो जाएगा, नहीं, इट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम विद इन यू। सो रिट्रीट इज़ ए प्लेस जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत आपके अंदर से होती है रेदर देन आपके बाहर से। अगर आपकी रिलेशनशिप को ठीक करना है तो शुरुआत आपके अंदर से होगी, अगर आपके फाइनेंसेस को ठीक करना है तो शुरुआत आपके अंदर से होगी। एंड वी वर्क ऑन ईच लेयर। हमें पता है लोगों के पेन पॉइंट्स, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एंड हेल्थ, ये 3 ऐसे इश्यूज़ हैं, आप नहीं भी बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी की लाइफ में होता ही है। एंड सबसे ज़्यादा लोग रिजल्ट कहाँ देखना चाहते हैं? फाइनेंसेस पे। तो वी हैव सीन पीपल जो मतलब एक एजेंसी का ओनर आया था एंड ही आफ्टर गोइंग फ्रॉम दिस रिट्रीट ही इज़ आई थिंक हार्डली 26-27 ईयर ओल्ड। आके सिर्फ वो हर सेशन में उसको नींद आ जाती थी, वो सो जाता था, ठीक है। एंड ही सेड कि पता नहीं मेरी हीलिंग भी हुई कि नहीं हुई। और यहाँ से लेकिन जाने के बाद 2-3 महीने बाद उसका कॉल आया और कहता है कि सर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दैट रिट्रीट, मेरा रेवेन्यू 3 टाइम्स ग्रो कर गया है। एंड कहता है कि सर मेरी टीम इतनी एफिशिएंट हो गई है, इतने अच्छे अच्छे लोग मेरी टीम में आ गए हैं, जो लोग मेरी टीम में रुकते नहीं थे वो रुकने लग गए हैं, ऑपरेशंस इतने स्मूथ हो गए हैं, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है। कहते कैसे करके मेरा 3 टाइम्स ग्रो कर गया, मेरी टीम इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। कहता कि एंड ही सेड कि मेरे को अपने अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, मैं अपने बिहेवियर में, मेरे पैटर्न्स में, एवरीथिंग वाज विजिबल। टीम क्यों रुकने लगी? क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हुआ, राइट, उसका सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ, उसका रिटेंशन के लिए जो क्वालिटीज़ की ज़रूरत थी वो चेंज हो गई, अपने आप रिजल्ट आएंगे। तो जब आपके इंटरनल वर्क हो जाता है ना तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको रिजल्ट दिखते ही दिखते हैं। तो वंस योर इनर वर्ल्ड शिफ्ट, योर आउटर वर्ल्ड ऑल्सो शिफ्ट। सो इनर एनर्जी, इनर सिस्टम्स, वो सारी चीज़ों पर काम करना हमारी एक्सपर्टीज़ है। आउटर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो हम वहाँ कमिट भी नहीं करते कि वहाँ क्या चेंज आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है हम ओवर डिलीवर कर देते हैं। जितना आप एक्सपेक्ट करके आओगे उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। आपने सौरभ बहुत बार अभी तक मेंशन कर दिया है कि देयर इज़ अ क्रिस्टल ग्रिड। व्हाट इज़ दैट क्रिस्टल ग्रिड? ओके, तो क्रिस्टल ग्रिड, अगर आप हीलर्स, अगर कोई भी हीलर इस कंटेंट को सुन रहा होगा तो वो समझते होंगे रेकी में हम क्रिस्टल ग्रिड बनाते हैं, क्रिस्टल पॉइंट्स पॉइंटिंग इनवर्ड्स एंड देयर इज अ क्रिस्टल सेंटर पीस होता है उसमें, और उस मास्टर क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, और वहाँ पर हम हीलिंग अफर्मेशंस रखते हैं, हीलिंग करते हैं, राइट। जो हम क्रिस्टल ग्रिड बनाते हैं दैट इज़ नोवेयर नियर दैट। इट इज़ अ ह्यूज ग्रिड, लगभग 6-8 फीट का उसका डायमीटर होता है, बोथ दी साइड्स, एंड वो किसी सेक्रेट ज्योमेट्री में बनाते हैं हम। और उस ज्योमेट्री में जब हम बहुत बड़े बड़े मतलब लाखों रुपए के क्रिस्टल उस ग्रिड के अंदर लगते हैं, ठीक है, कि बॉक्सेस एंड बॉक्सेस ऑफ क्रिस्टल्स उसमें लग जाते हैं। और वो जो क्रिस्टल्स हैं उनके सिलेक्शन वो हम बहुत प्रिसाइसली करते हैं, दैट इज़ अवर एक्सपर्टीज़। कौन से क्रिस्टल के साथ कौन सा क्रिस्टल लग सकता है टू क्रिएट दैट एनर्जी, वो हमारी एक्सपर्टीज़ है।
एंड उस ग्रिड से जो एनर्जी क्रिएट होगी उसको कैसे ऑल्टर करना है वो हमारी एक्सपर्टीज़ है। हमने एक रिट्रीट में लोगों को एक्सपीरियंस करवाया था कि ग्रिड बनी हुई है, लोगों ने उसकी एनर्जी को सेंस किया, उसके साथ मेडिटेट किया, फील कर लिया पूरा अच्छे से। वी जस्ट moved 6 crystals out of hundreds of crystals. We just moved 6 crystals from that grid. And then we asked everyone to feel the energy of the grid. And it was so intense now that कोई चीज़ होती है ना, जैसे आपके आगे अगर एक लाइट जल रही है, आपके लिए सूदिंग है, मैं एक सिर्फ पर्दा हटा दूँ उसके आगे से, वो आपके लिए सूदिंग नहीं है, एंड यू कैंट टॉलरेट दैट, राइट। तो लेकिन ऐसा तो नहीं, उस लाइट की ज़रूरत नहीं थी, बट वो उस डिफ्यूज़र की भी ज़रूरत थी जो उस लाइट को सॉफ्ट कर सके। तो सिमिलरली उस क्रिस्टल ग्रिड में वो डिफ्यूज़र का काम कर रहे थे। तो जब हंड्रेड्स ऑफ क्रिस्टल, उसमें से सिर्फ 6 क्रिस्टल हमने हटाए, एंड पीपल वर नॉट एबल टू बी कंफर्टेबल विद दैट ग्रिड। दे वर फीलिंग सो एजिटेटेड, किसी को रोना आने लग गया, किसी को एजिटेशन होने लगी, किसी को सर में हैवीनेस फील होने लगी, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस। एंड व्हेन वी प्लेस द क्रिस्टल्स बैक, एवरीवन वाज फीलिंग कंफर्टेबल। और ये हमने उनको बता के नहीं किया था, हमने उनको आंखें बंद करवाई, क्रिस्टल्स मूव किए और बोला अब एक्सपीरियंस करो ग्रिड को, एंड लोगों के एक्सपीरियंस चेंज थे। हमने फिर किया, फिर से वापस क्रिस्टल्स को ठीक किया, एंड वी आस्क्ड हिम नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन वी एक्सप्लेन्ड हाउ वी क्रिएट द ग्रिड्स। सो वी टीच ऑल्सो, वो डिफरेंट प्रोग्राम होता है जिसमें हम क्रिस्टल ग्रिड बनाना सिखाते हैं इस लेवल की। तो वी ट्रेन हीलर्स, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हम जैसे बहुत सारे हीलर्स में क्रिएट कर पाऊँ जो इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवर कर पाए। आई लुक फॉर राइट कैंडिडेट्स हु कैन कम एंड लर्न एट दिस लेवल एंड डिलीवर एट दिस लेवल। तो वो जो रिट्रीट की जो ग्रिड है वो इसीलिए इतनी ख़ास है क्योंकि उसमें सच में मेरे कई दिन लगते हैं उस ग्रिड को डिज़ाइन करने में, कौन सा क्रिस्टल कहाँ लगेगा वो डिसाइड करने में, और क्या क्या हम लगाएंगे, कितना लगाएंगे, किस क्वांटिटी में लगाएंगे, वो सारी चीज़ें हम उसमें इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं, तब कहीं जाकर वो फाइनल डे पर वो ग्रिड सबके सामने आती है। सो वी यूज डिफरेंट सेक्रेड ज्योमेट्रीज जिसमें हम क्रिस्टल्स को अलाइन करते हैं, एंड प्लेसिंग द क्रिस्टल्स इन दैट ज्योमेट्री, it's a very mindful job. You have to be very careful. It takes 8 to 10 hours to create that grid. हम एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके ग्रिड क्रिएट करते हैं। तो हमारे लिए तो जो प्रोग्राम है वो एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वेन्यू स्टार्ट्स चार्जिंग यू फ्रॉम द डे यू टेक द हॉल फ्रॉम देम। तो वी टेक द हॉल 1 day in advance and then we deliver the program. Yes, because it is very important for us to create the right energy, so that we call it's a transformative retreat. So it's not just a fancy word that we have used. We deliver it. Yeah. Now that you've understood what possibly a retreat is and can do to your life experiences, and you've understood what transformations have happened in lives of people who were just like you, somebody had problems related to health, money, and other things just like you might have. And if this is something that interests you, intrigues you, and you are looking for that kind of change, this experience is a must try.